السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، اپوزیشن کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ کل سابق صدر آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، جس کے بعد پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان کوئی لڑائی نہیں اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ پر کوئی اعتراض نہیں، چونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان لاہور میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور ان ساری ملاقاتوں کا بنیادی مقصد وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی تحریکیں چلی ہیں تو خواہش کے مطابق اس کے نتیجے نہیں ملے۔ انشاءاللہ اگر آپ عدم اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ 3.5 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں۔ 172 ممبر لانا آپ کا کام ہے۔ بعد میں یہ کہیں گے نہیں جناب علی فون آ گیا تھا، کورونا ہو گیا تھا۔ یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کوئی اشارہ نہیں ہے، پلہ مار کے دیوا بجا گئی تے آنکھ دا اشارہ کر گئی، ایسے ہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف کو اپنے اندر سے خطرات کا سامنا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ تقریباً پچھلے 1 سال سے متحرک ہے، اس کے رابطوں میں اب تیزی آ گئی ہے۔ اس گروپ کے پاس اون چودھری کے مطابق 37 ارکان ہیں جو اگر اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں تو پنجاب اور وفاق میں حکومت کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ شاید اسی لیے حکمران جماعت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ترین صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی 5-6 سال سے۔ میرے نزدیک وہ ایک اچھے انسان ہیں، پولیٹیکل بندے ہیں۔ تحریک انصاف جہاں اور لوگوں سے بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم ہماری اتحادی پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، اور اگر جہانگیر ترین سے بھی بات کی جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا۔ سیاستدان کبھی دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر نون لیگ 14 سال بعد کاف لیگ کی طرف جا سکتی ہے تو عمران خان اور جہانگیر ترین تو پرانے ساتھی ہیں۔ دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن دوستوں میں اختلافات کا مطلب یہ نہیں کوئی لا تعلقی ہو جاتی ہے۔ میری یہ سیاسی رائے ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے نہ ملنا ہو نہ ملیں۔ قومی سیاست کس سمت میں جاری ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نون لیگ کی ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ کے سعید اکبر نوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں۔ سب سے پہلے ہنا صاحبہ اگر آپ کی اجازت ہو تو نوانی صاحب سے کچھ سوال کرتے ہیں، چونکہ خبر وہیں سے آ رہی ہے۔ نوانی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے گروپ کی جہانگیر خان ترین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس میں کیا طے پایا ہے؟ میڈم میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی جہانگیر ترین صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ مطلب یہ بات نون لیگ والے بھی اس کو ریفیوز کرتے ہیں، اور مجھے اور جہانگیر ترین صاحب کی اگر ملاقات ہوتی تو ہمیں ضرور اعتماد میں لیتے۔ وہ کوئی بات بھی دوستوں کے مشورے اور اس کی ان کو انفارم کیے بغیر نہیں کرتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی شاید ملاقات ہوئی ہو۔ اچھا، مگر آپ نے سنا ہوگا کہ فیاض الحسن چوہان جو ایک اہم وزیر ہیں پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا آپ کو سناتے ہیں۔ آج سے 2 دن پہلے ماڈل ٹاؤن میں مخدوم احمد محمود صاحب کی رہائش گاہ پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو زندگی میں کبھی آل شریف اور شہباز شریف کے در سے فیض نہیں مل سکتا۔ کوئی طریقہ تو اعتماد نہیں آئے گی، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی طریقے تو اعتماد لانے کی ضرورت ہے۔ نہ شہباز شریف کو پتہ ہے، نہ نواز شریف کو پتہ ہے، نہ آصف زرداری صاحب کو پتہ ہے، نہ بلاول زرداری صاحب کو پتہ ہے۔ یہ ہوا میں تیر چلانے لگے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے اندر ان کے 15 کے قریب جناب ان کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں جو ہم سے پارٹی ٹکٹ مانگ رہے ہیں اگلے الیکشن کے اندر۔ تو نوانی صاحب، آپ نے سن لیا کہ خود فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ جی مخدوم احمد مخدوم صاحب کے رہائش گاہ کے اوپر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے قابل احترام ہے، لیکن کبھی بھی ان کی بات پہ اتنا وزن نہیں ہوتا، اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی خواہش کے ساتھ فی دفعہ بیان دے جاتے ہیں۔ مجھے میری یہ رائے آپ دیکھیں نا،
मुलाकात कराने वाला मखदूम अहमद महमूद साहब जो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं साउथ के, अगर उन्होंने को मुलाकात करनी थी तो वो मखदूम अहमद महमूद के ही जरिए करनी थी, वो खुद भी तो कर सकते थे। मैं नहीं समझता कि इस बात में कोई वजन है। ठीक है, हिना भट्ट साहिबा, आपके पास क्या मालूमात है? नून लीग से भी खामोशी है, इस मुलाकात के बारे में बाहर कुछ आ नहीं रहा, मगर फयाजुल हसन चौहान साहब ऑन द रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि जी ये मुलाकात हुई, उन्होंने तो जगह भी बता दी कि जी मखदूम अहमद महमूद के घर हुई। मुनज़्ज़र, मुझे इस मुलाकात का नहीं पता, और मैं लेकिन फयाज हसन चौहान की आपने अभी स्टेटमेंट चलाई और उसमें उन्होंने कहा कि 15 ऐसे अराकीन हैं पंजाब में जो अगली दफा पीटीआई का टिकट मांग रहे हैं। तो इससे तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि फयाज हसन चौहान साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि अगर आप देख लें बाई इलेक्शंस, आप डस्का का इलेक्शन देख लें, आप खानेवाल का इलेक्शन देख लें, आप जितने भी इलेक्शन, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देख लें, कि जो जिस तरह पीटीआई बुरी तरह से इनके बाय इलेक्शंस में हार रही है, तो मुझे बताएं कि कोई भी नहीं अगली दफा पीटीआई का टिकट मांग रहा। तो सबसे पहला तो झूठ फयाज हसन चौहान साहब ने यही बोल दिया कि 15 ऐसे एमपीएज हैं पंजाब में जो हमारे से पीटीआई का टिकट मांग रहे हैं। तो इसको तो मैं क्लियरली इनकी बात को ये निगेट करती हूँ और मैं कहती हूँ ये झूठ है, क्योंकि पीएमएलएन का कोई एक बंदा या ऑपोजिशन का कोई भी बंदा पीटीआई से टिकट नहीं मांगेगा, ना मांग रहा है। क्योंकि अगर आप देखें इन्होंने अवाम का क्या हाल देख कर लिया, अगर आप महंगाई देख लें, अगर आप बेरोजगारी देख लें, आप सब सर्वेज देख लें, चाहे आप बाय इलेक्शंस के अंदर देख लें कि जिस तरह ये पीटीआई हारी है। शहबाज गिल साहब फैसलाबाद गए, किस तरह लोगों ने के ऊपर नारे लगाए। तो पीटीआई का टिकट कोई भी नहीं अगली दफा मांगेगा। तो फयाज हसन साहब चौहान साहब जो ये बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल झूठ है। और जहां तक जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात है, मुझे कोई आइडिया नहीं, वो भी मैंने भी इन्हीं की सुनी है। तो आई थिंक ये इन्होंने ऐसी स्टोरीज जो है ना वो बनाई है, दोबारा मीडिया में फयाज हसन चौहान मन घड़त स्टोरीज बनाई है, आपका ये कहना है। दोनों साइडों से ये आ रही है बात। नून लीग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ जेकेटी ग्रुप के जो अकबर नवानी साहब है, दोनों कह रहे हैं कि जी ये मुलाकात नहीं हुई, मगर फयाजुल हसन, एक बात ये जरूर है कि पीटीआई के अप्रॉक्सिमेटली 24 से जायद लोग हैं, ज्यादा लोग हैं एमपीएस पंजाब में जो इनसे खुश नहीं है और वो अगले इलेक्शन में पीएमएलएन की टिकट चाहती हैं। अच्छा, नवानी साहब बैठे हुए, नवानी साहब अगला जो इलेक्शन है दूर नहीं है, अब तो 1 साल रह गया है। मुझे ये बताइए कि आप क्या पीटीआई के टिकट पे ही लड़ेंगे या आप समझते हैं कि नहीं इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ना चाहिए? मैडम, मैं 2018 में भी इंडिपेंडेंट लड़ा था। तो अब जब इलेक्शन आ रहा है तो वे फिर उसी वक्त, क्योंकि हम इस वक्त पीटीआई के साथ हैं, तो उस वक्त जो पार्टी डिसाइड करेगी या हम करेंगे उसके मुताबिक ही होगा। लेकिन क्योंकि हम खुद भी इंडिपेंडेंट लड़के पीटीआई को सपोर्ट किया था, तो हमारा तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मगर आपने कहा कि आपने इंडिपेंडेंट जो था वो आपने इलेक्शन लड़ा था, तो अब भी क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ना ही पसंद करेंगे? जाती राय भी तो होती है। मैडम, अभी हमने इस बात पे कभी कोई फैसला नहीं किया कि आगे इलेक्शन का माहौल देखेंगे, इलेक्शन के मुताबिक देखेंगे, क्योंकि हम एक पार्टी में खड़े हैं। तो अब इस वक्त हम तो उसी पार्टी के बारे में ही सोचेंगे नहीं, ठीक है, पार्टी में हम इस वक्त खड़े हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें आपको बात बता दूं, हम पीटीआई में थे जी, हमारे दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, उनके साथ एक जो एफआईआर हुई, हम लाइक माइंडेड दोस्त इकट्ठे हुए। तो इस वक्त भी हम उसी ग्रुप के साथ हैं जिनके सरबराह जहांगीर तरीन साहब हैं हम। लेकिन उस वक्त भी जहांगीर तरीन साहब ने भी आज तक कभी पीटीआई से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। तो इसलिए इस वक्त हम ये कहें कि हम पीटीआई से अलहदा हैं तो ये कोई मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जब हम पूरा ग्रुप ही पीटीआई के साथ हैं तो उस पार्टी में ही हैं और उस पार्टी के साथ हैं। तो ये जो फैसला है नवानी साहब, आपने जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि जी अगर वो पीटीआई के साथ रहेंगे तो हम भी रहेंगे, अगर वो उनसे निकलेंगे तो हम भी निकलेंगे? मैडम, इस बात पे अभी तक हमने कभी कोई डिस्कशन नहीं की कि कौन किस तरह इलेक्शन लड़ेगा, कैसे होगा।
हम तो मौजूदा हालात के मुताबिक आपसे बात कर रहे हैं, जो इस वक्त हालात हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि इस वक्त तक हमारे ग्रुप ने बशमूल जहांगीर तरीन साहब ने कभी ये फैसला नहीं किया कि हम इस अदम एतमाद में कोई पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ हैं। हमने ये फैसला नहीं किया और ना ही कभी इस पे कोई डिस्कशन चली। इस वक्त तक हमारा ये फैसला है कि हम आपकी पार्टी के साथ हैं और पीटीआई के साथ। अच्छा, इस वक्त तक आपका ये फैसला है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, जो तहरीके इंसाफ की वस्ती पंजाब की सेक्रेटरी इतलात है। मुसर्रत साहिबा, हमने तो DSNG आपकी तरफ भेजी हुई थी, मगर आप फोन पे हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो अब बात ये है मुसर्रत साहिबा के हिना साहिबा भी आई हुई हैं, हिना परवेज भट्ट साहिबा, नवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपके जो एक वजीर हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, वो तो आके मीडिया के अंदर कंफ्यूजन मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जहांगीर खान तरीन की मुलाकात हुई मखदूम अहमद महमूद के घर रिहाइशगाह पे, मगर वो दोनों डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ऐसी मुलाकात ही नहीं हुई। क्यों मन घड़त कहानियां बना रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो बड़ी माजरत, मैं वैसे अभी बैठ गई हूँ आपकी कैमरे के आगे, बहुत माजरत, बिकॉज मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था। तो थोड़ा सा आजकल लाहौर में ट्रैफिक का इशू है, तो आई वाज स्टक अप। ओके, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी बात सुनी है अपनी बहन हिना की, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, ही इज लाइक एल्डर ब्रदर फॉर मी, नवानी साहब, उनकी मैंने पूरी बात सुनी अभी जो बाद में आपने मुझसे सवाल किया। तो देखें, इन दोनों की जब आप बात सुने तो जो इस वक्त गवर्नमेंट की पोजीशन है वो क्लियर हो जाती है। और वो क्या है कि अगर हमारे वो भाई जो इंडिपेंडेंट थे, जो आजाद थे और पार्टी के साथ उन्होंने अपने आप को इत्तेहादी के तौर पर हमारे साथ वो शामिल हुए, वो तो आज तक ये भी नहीं कह रहे कि वो पार्टी का टिकट नहीं लेंगे या वो आजाद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये कौन सा मफरूजा है, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, हमें बताया जाए जिसके तहत ये कह रहे हैं कि हमारे साथ फलाने इतने लोग हैं तो उतने लोग नहीं है। जबकि हमारे एलाइज, जिसमें नवानी साहब जैसे काबिल एहतराम लोग, जिसमें अगर एक लाइक माइंडेड ग्रुप बना, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो चूंकि उनका एक ताल्लुक है और सियासत में लोग वजादारी में ताल्लुक में बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस भी करते हैं, कि उस वजह से वो एक उन्होंने रीजन बताई कि वाई दे आर लाइक माइंडेड, दे आर गोइंग टू सपोर्ट JKT साहब। उसकी रीजंस भी उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। ना कभी तरीन साहब ने उनसे ये बात नहीं, मगर ये मुलाकात हुई कि नहीं हुई मुसर्रत साहिबा, दूसरा ये तो क्लियर करे ना। चूंकि देखिए, अगर आपका कोई वजीर आके, ये कोई आपका कोई वर्कर नहीं है, आपका वजीर आके ये बोलता है मीडिया के ऊपर, मैंने साउंड बाइट भी सुनाई आपको, और उसके अंदर उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि रिहाइशगाह पे मुलाकात हुई है मखदूम अहमद महमूद के घर, तो फिर क्यों उन्होंने ये बयान दिया अगर हुई नहीं मुलाकात? देखें मुनीज़े, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये कि मैं मेरे भाई है, मेरे वो कोलीग है, मैं उनकी तर्जुमान नहीं हूँ, तो उन्होंने ये बात की होगी तो पार्टी में है। अगर कोई गलत बात करूंगी, अगर कोई गलत बयान दे रहा है तो शोकॉज भी तो दिया जा सकता है पार्टी की तरफ से। अच्छा, नहीं, ये कोई सियासत में ये बयान कि किसी से मुलाकात हुई, हम तो उस पर शोकॉज दे दें और इधर हमारी इज्जतें ही महफूज नहीं है, तो उसके ऊपर अगर हम कोई लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शोर भी मीडिया से उठता है। देखिए, जब जिस तरह का माहौल चल रहा है सियासत के अंदर, ये खबर बहुत सारे चैनल ने भी ब्रेक की है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आई है, सोशल मीडिया पे वजीर के मुंह से आई है मुसर्रत साहिबा, वो हमने नहीं बनाई, वो उन्होंने थोड़ा सा ना, लेट मी कंप्लीट जी मुनीज़े, लेट मी कंप्लीट ना। मेरा आप आर्गूमेंट लो। मैं चूंकि एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूं तो मैं पार्टी का मौकफ आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं PTA पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूं, तो जो मेरा मौकफ होगा वो पार्टी का मौकफ होगा, तो वो आप ले लें कि पार्टी क्या सोच रही है और हमारी ऑफिशियल पोजीशन क्या है। उसके अलावा हमारे इतने ज्यादा मेंबर्स हैं, अगर किसी को पता चली होगी कि मीटिंग हुई, मेरे लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुलाकातें तो ये लोग कर रहे हैं, और अगर तरीन साहब ने डिनाई किया तो हमें उनकी इस बात को रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि अगर मिलने वाली पार्टी कह रही है कि मैं नहीं मिला तो हमें उसको ऐसे ही लेना चाहिए। आई बिलीव इन सच थिंग्स। आगे जो बात है, अगली मैं मौकफ जो रखना चाहती हूँ, देखें ये अब एक मैं बात करूंगी जो कि एक रियलिटी है। इनके बहुत सारे लोग, इन्होंने बारहा 3.5 साल का जो स्टेटमेंट्स हैं वो निकालें,
اور اس کے اوپر پھر فیصلہ کریں. وہ کیا ہے کہ آر پار یہ آج گئے کہ کل گئے, ہر دفعہ ہر دوسرے مہینے, یہ میں کہتی ہوں کہ یہ 50 دفعہ اس کے اوپر پروگرام BCO ہو چکے ہیں کہ جی ہماری حکومت یہ گرانے لگے, یہ اتحادیوں سے مل گئے. یہ ضرور ہے کہ ابھی تھوڑی سی بڑی عجیب و غریب واقعات بھی اس ملک کی میڈیا نے کور کی اور عوام نے دیکھے. وہ کیا کہ 14 سال بعد تشریف لے گئے شہباز شریف صاحب عیادت کے لیے, حالانکہ اب تو ماشاءاللہ ہی از ایٹ ہوم. جب وہ ہاسپٹل میں تھے تب تو ان کو جانا نصیب نہ ہوا, نہ توفیق ہوئی. اگلی بات یہ کہ یہ در در ضرور جا رہے ہیں لوگ, جہاں جدھر جس کا جو وزن ہے وہ لے کے بیٹھا ہے. سیاست میں کوئی کسی کو ملنے پہ پابندی نہیں کرتا. آج اگر میرے گھر بھی کوئی فرض کریں کہ کوئی کہے کہ ہم نے آنا ہے تو میں ایک دفعہ سوچوں گی تو ضرور. تو پھر بیان کیوں دے رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, مسرت صاحبہ شیخ رشید صاحب کا بیان سن لیں. نہیں, شیخ رشید صاحب آپ کے ہی وزیر ہے نا, وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ آپ کو جہانگیر خان ترین گروپ سے مل لینا چاہیے. سن لیں جی, اب اگلی بات سن لیں. تو یہ تجویز کو وہ تو ہمارے ساتھ دیکھیں, وہ پہلے بھی تو ان کے جتنے بھی ممبرز ہیں یہ کبھی ہمارے اگینسٹ نہیں گئے. آپ اس چیز کو بھی تو دیکھیں نا, آج تک انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف ووٹ ان کے ساتھ نہیں کیا. ان کے تو اپنے لوگ نہیں آتے. منیزہ یو ہیو ٹو لسن کہ دیکھیں جب بھی کبھی کروشل ٹائم آیا جس پہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے, بہت بڑے بڑے نعرے لگائے, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سینٹ کے اندر اگر اپوزیشن جماعتیں مل جاتی تو یہ کچھ کر بھی سکتی تھی. وہ سارے بل ہم نے پاس کیے. اس کے بعد جب انہوں نے پہلے بھی جب سینٹ کے اندر آپ کو پتا ہے جب سینٹ کا الیکشن تھا اس کے بعد ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. پھر آپ کو پتا ہے کہ اس اپوزیشن کا حشر کیا ہوا. اپوزیشن تکیہ لگا کے بیٹھے, اپوزیشن کا اتحاد نہیں ہے. عدم اعتماد ہے تو دو باتیں, لیٹ می کمپلیٹ. دو چیزوں میں عدم اعتماد ضرور ہے. بات ہو رہی ہے آپ سے, پروگرام ہم کر رہے ہیں, اپوزیشن کے اندر ہے. جی جی ہنا صاحبہ یہ جو بات کر رہی ہیں مسرت صاحبہ کہ دیکھیے جب سینٹ کے اندر معاملہ آتا ہے تو جو حکومت ہے وہ جیت جاتی ہے, حالانکہ سینٹ کے اندر ان کے نمبر نہیں ہیں, آپ کی اکثریت ہے. مگر دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی حال ہی میں ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جی پشاور کی طرف سے فون کالز آ رہی ہیں, دباؤ پڑ رہا ہے ارکان اسمبلی کے اوپر. تو پہلے تو آپ لوگ کھل کے نام لے لیتے تھے کہ کن کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے, اب کیوں صرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ منظر, سب سے پہلے تو مسرت چیمہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹ میٹر کرتی ہے اور فیاض چوہان صاحب کی سٹیٹمنٹ میٹر نہیں کرتی. تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, وہ جو سٹیٹمنٹ دیں گی وہ میٹر کرے گی. فیاض چوہان صاحب تو کچھ بھی آ کے بول دیتے ہیں. تو یہ اچھا کیا مسرت چیمہ صاحبہ نے شو پہ آ کے یہ خود ہی کہہ دیا. دوسری بات جو شیخ رشید کی بات کر رہی ہیں, وہ شیخ رشید نے مجھے لگتا ہے مشورہ اسد عمر کو اور شاہ محمود قریشی کو دیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے دوبارہ ملنے, کیونکہ وہی آپ کو پتا ہے رکاوٹ ہے جہانگیر ترین سے ملنے میں. اور جہانگیر ترین کی جہاں تک صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, تو جہانگیر ترین صاحب نے ان کو پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے بڑی ہیلپ کی تھی, لیکن عمران خان صاحب نے انہی سے بدلہ لیا اور جو ان کے حال کیا نا وہ, اور باقی بھی بہت سے لوگ, آپ چاہے علیم خان کو پوچھ لیں, ان سے کوشچن کر لیں, یا جتنے بھی لوگ جنہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا تھا اس وقت سب اورینٹڈ, دے ناٹ ہیپی. مگر آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جو شیخ رشید ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اسد عمر کی طرف اور شاہ محمود کی طرف, اور وہی ایک رکاوٹ بنے ہوئے جہانگیر خان ترین, اس کے ایکسپلین کریں کیا مطلب ہے؟ یہ میں نے آپ کو بڑا میسج دیا ہے بیکاز یہ جہانگیر ترین سے جو جس طرح عمران خان صاحب نے سلوک کیا ہے نا, وہ آئی تھنک سب کو ہی پتا ہے ان دا لاسٹ 3.5 years. لیکن میں آپ سے تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے جہانگیر ترین کی ملاقات والی بات کی, دیکھیں CEC کی جب میٹنگ ہوئی تھی PMLN کی, تو میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ اتھارٹی دے دی تھی اور کہا تھا, سب نے نواز شریف صاحب پہ اپنا اعتماد شو کیا, سب نے, انہوں نے کہا جو نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں, جو وہ ڈیسیجن کریں گے ہم ان کو مانیں گے. اور نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ نے رابطے سٹارٹ کرنے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے اتحادیوں سے بھی ہوئی, جوائنٹ الائنس بھی ہوئی, زرداری صاحب سے بھی ہوئی, آج بھی ملاقات ہو رہی ہے, اس کا بھی نتیجہ آئے گا. تو یہ کوشچن نہیں ہے جہانگیر ترین سے ملاقات یا نہیں ملاقات, کوئی نیوز ایسی نہیں آئی, پر I'm just generally saying کہ ایسے لوگ ہیں بہت سے جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ PTI کے ساتھ اتحادی ہیں اس وقت,
اور کچھ اتحادی ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو ان سے ناخوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے وہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ لیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے جاتے ہیں۔ اور آج جو ملاقات ہوئی ہے، اگر آپ عدم اعتماد چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کا ٹکٹ چاہ رہے ہیں تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ بہت جلدی، میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھنا ان دا کمنگ ڈیز یہ بڑی آپ کو ایک گڈ نیوز ملنے والی ہے۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو اپنا بیان دیا انہوں نے بالکل کلیئر کہہ دیا، اور وہ بات کل ہی انہوں نے جو کی کہ ان کو گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، اسی لیے جو ہے وہ فون کالز بھی دوبارہ کرنا شروع کر دے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو ابھی زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اس سے پہلے مولانا صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے اور بھی بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، اور پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے 24 سے ابو ایم پی ایز ہیں جو پی ایم ایل این کے ساتھ اور کوان سے ساتھ ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو بہت ہی جلد آپ دیکھنا کہ جو ہے یہ نو کانفیڈنس والی موو بھی وہ سامنے آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی اسٹریم لائن ہونے والی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے بات یہ کہ زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، پھر وہ اسی طرح شہباز شریف صاحب کے پاس گئے۔ نوانی صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی تک موجود ہیں تو جو ہنا بٹ صاحبہ ایک بات کر رہی ہیں، جہانگیر خان ترین اور اسد عمر اور شاہ محمود کی کیسی ریلیشن شپ ہے؟ اب میں جو ابھی رات ہے تو میں اس کو دن کہوں گا تو کوئی بھی نہیں مانے گا، ان کی ریلیشن شپ سخت ٹینس ہے۔ ان کی آپس میں جو جیسے پولیٹیکل پارٹیز میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بہتر نہیں ہوتے، نہ شاہ محمود صاحب کے پاس ہیں ساتھ ہیں، نہ اسد عمر کے ساتھ ہے۔ یہ تو سارا پورے پاکستان کے ہر آدمی کو پتا ہے۔ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کی موومنٹ چلتی ہیں تو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اتنی متحرک ہے، تو میں ایک اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا اس میں متحرک ہوں، اپنے جو ان کے ساتھ جن کی تھوڑی بہت ناراضگیاں ہیں یا کوئی شکر رنجی ہے اپنے پارٹی کے اندر کے لوگوں کو، ان سے ان کو بات کرنی چاہیے۔ اگر کس کو کس سے بات کرنی چاہیے نوانی صاحب، تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، کس کو کس سے بات کرنی چاہیے اور کس لیول پہ کرنی چاہیے؟ نوانی صاحب جہانگیر ترین صاحب کو ملے ہیں یا نہیں ملے؟ میرے لیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ آج آپ میرے سے پوچھتے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ کیا، کسی اور پارٹی کے عہدیدار نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوتی۔ مسرت صاحبہ، آپ نے نوانی صاحب کی بات سن لی، جو وہ شکایت کر رہے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور ملاقاتیں ہونی چاہیے، جہانگیر خان ترین صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے آپ کے لوگوں کے ساتھ۔ اب ان کی طبیعت خراب تھی اس لیے ان کو شاید آواز صحیح طرح سے نہیں آ رہی تھی، مگر کیا وجہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ اتنی قربتیں مگر ملاقات ہی نہیں ہو پائی ان کی آپ کے لوگوں کے ساتھ؟ آپ بھی تو مل سکتے ہیں۔ دیکھیں منیزے، میں 2-3 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جواب ہے سعید بھائی نے جو جتنی بھی بات کی، ان تمام افواہوں کا کہ ہمارے ساتھ فلانا گروپ نہیں ہے، دھماکہ گروپ نہیں ہے، فلاں اتحادی نہیں ہے، سارے اتحادی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پارٹی کے اندر آپسی اختلافات ہونے کے اوپر ہم اپوزیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں یا ان کو مشورہ دیتے ہیں، اگر انہوں نے لینا ہے لے لیں، نہیں تو اگر خوش ہونا ہے تو ہوتے رہیں۔ یہ بگلے پہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرض کریں میرا اگر ڈفرنس آف اوپینین ہو، ہم وہ ٹیبل کرتے ہیں جس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ او جی میرا سوال بڑا مختلف تھا، یہ نہیں ہے، اگر آپ جواب دیتے بہت اچھا ہو جائے۔ آ رہی ہوں جی آپ منیزے، مجھے بھی تھوڑا سا میرا موقف بھی تو سامنے رکھنے دیں، میں آ رہی ہوں اسی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپوزیشن کا کیمپ جوائن کر لیا۔ ہمارے سارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں، ہمارے ایلائز ہیں، ہمارے ساتھ جو انڈیپینڈنٹ ملے ہیں، ان کے سارے کنسرنز کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، ہم کرتے بھی رہتے ہیں، اور مزید جہاں پہ کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جس پہ میں ان کو مشورہ دے دوں کہ جب وقت آئے گا نا تو چیزیں ہمارے پاس ان کے لیے، ان کو دینے کے لیے بہت ہی بہتر سرپرائز ہے۔ ایز آلویز ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، ہم نے ان کو سرپرائز کیا ہے، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو، چاہے وہ سینٹ کے اندر ہمارے بل پاس ہونے ہو، سارے اتحادی ہمارے ساتھ، اور ان کے میں نمبر نہیں بتاتی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ بالکل وقت کی قلت ہے، بالکل 30 سیکنڈ رہ گئے مسرت صاحبہ، جی کنکلوڈنگ ریمارکس ہنا صاحبہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو سرپرائز دیں گے جس طرح ہمیشہ دیتے ہیں، سینٹ کے اندر بھی دیا ہم نے بہت سارے آپ کو۔
देखिए, इनकी बेसिकली बात यह है कि इमरान खान साहब की और पीटीआई की इन द लास्ट 3.5 years एंटी पीपल पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, महंगाई, जितनी आपने देखी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अभी लेटेस्ट जो आई अभी फिगर्स, उसमें 18% महंगाई थी, 28 आइटम्स दोबारा एवरीडे यूज की जो है वो महंगाई। मगर फिर से अगर पेशावर से कॉल्स आ गए तो ज्यादा लोग महंगाई से, सबसे ज्यादा लोग, मैं वही कह रही हूँ, एंटी पीपल पॉलिसीज की वजह से जहांगीर तरीन साहब का भी जो ग्रुप है, उनका कोई नुमाइंदा आके जो नहीं बैठता। हाँ जी, देखिए जो इनकी पीटीआई की इमरान खान साहब, हाँ, जो आवाम की एंटी अवाम की पॉलिसीज हैं, चाहे आप इन्फ्लेशन देख लें, चाहे आप मईशत की तबाही देख लें, चाहे आपने इनके इत्तेहादियों की बात सुनी, परवेज इलाही साहब ने खुद कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है। इसी तरह आपने जहांगीर खान तरीन साहब की स्टेटमेंट्स देखी कि वो भी इस हुकूमत की एंटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ है, वो गवर्नमेंट के साथ है, इनके बहुत सारे लोग हमारे साथ राब्ते में। चले, अगर इत्तेहादियों ने दोबारा अवाम में जाना है, अगर ये जो जितने भी इंडिपेंडेंस है उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ने हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये पीटीआई को अगर इन्होंने सपोर्ट किया और इनको ये सपोर्ट करते रहे तो अगली दफा इनको भी ये भी वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अवाम के ऊपर महंगाई की है, जिस तरह इन्होंने बेरोजगारी की है, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू एंड दिस सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहिबा, मुसर्रत चीमा साहिबा, नवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। नाजरीन, तो इस वक्त जो है सियासत बड़े दिलचस्प नहज के ऊपर आ गया है। अब आगे क्या होगा इसका, जो जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने कार्ड्स अपने बड़े करीब लगा के रखे हुए। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि स्विस सीक्रेट्स क्या हैं और उसके अंदर किन किन का नाम आया है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। स्विस सीक्रेट्स की बात करते हैं। ये वो राज हैं जो अब खुलकर सामने आए हैं और जिनकी वजह से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। क्रेडिट स्विस दुनिया का मशहूर तरीन बैंक, जहां अकाउंट्स रखने वाले के नाम खुफिया रखे जाते हैं, लेकिन अब वहां से डेटा लीक हुआ है जिसके मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरानों, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहों, कारोबारी हजरात और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस अफराद के $1 मिलियन पड़े हुए हैं। ये इंकशाफात जर्मनी के अखबार में शाया हुए। अकाउंट्स होल्डर्स में उर्दन के किंग अब्दुल्ला दोम और मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक के 2 बेटे भी शामिल हैं। 2016 में पनामा पेपर्स, 2017 में पैराडाइज पेपर्स और 2021 में पेंडोरा पेपर्स आए। इन तमाम लीक से पता चला कि दौलतमंद और जुराइम पेशा लोग कैसे अपने पैसों को छुपाते हैं और इन पर टैक्स नाफिज करने वाले इदारों की नजर नहीं पड़ती। अक्सर वजीर आजम भी इसका जिक्र करते हैं। दुनिया के बड़े लोगों के नाम तो सामने आए, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान और जनरल्स भी किसी से पीछे नहीं रहे। इनमें से एक जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जो जियाउल हक के करीबी साथी हैं, उनका भी नाम आया है और वो ISI के सरबराह भी रह चुके हैं। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के दौर में अफगान जहाद मुजाहिदीन के लिए अरबों डॉलर की इमदाद आई। इस न्यूज़पेपर के मुताबिक जो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल की गई। लीक्स के रिकॉर्ड के मुताबिक सदर रेगन ने 1985 में अफगानिस्तान को जाने वाली इमदाद का जायजा लेने का मुतालबा भी किया था। इस दौरान जनरल अख्तर के तीनों बेटे हारून, अकबर और गाजी के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। कुछ सालों में इस अकाउंट में $3.7 मिलियन इकट्ठे हो चुके थे। इसके अलावा जनरल जाहिद अकबर का नाम सामने आया, जो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटे हारून अख्तर के सुसर हैं। जनरल जाहिद अकबर ने 2004 में स्विस बैंक्स में अकाउंट्स खोले थे और सियासतदान भी किसी से पीछे नहीं रहे। नाजरीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सेनेटर गुलजार समेत इनके दोनों बेटे, जो साबिक सेनेटर वकार और साबिक सेनेटर अमार हैं, उनके 2008 में अकाउंट्स खोले गए। इसके अलावा वफाकी वजीर इंडस्ट्रीज खुसरो बख्तियार के भाई हाशिम जवान बख्त, जो पंजाब के वजीर खजाना हैं, वो भी स्विस बैंक के क्लाइंट रह चुके हैं। इसके अलावा साबिक सेनेटर सैफुल्लाह बंगिश भी स्विस बैंक की खुफिया बैंकिंग से मुस्तफीद होते रहे हैं। याद रहे कि खुसरो बख्तियार के खानदान का नाम पेंडोरा पेपर्स में भी पहले भी आ चुका है। पैनामा पेपर्स के बाद नाजरीन नवाज शरीफ पर केस चला और उनको 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या एहतसाब का निजाम सबके लिए एक है और बाकी भी इसकी जद में आएंगे या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द न्यूज के उमर चीमा, जो तहकीकाती सहाफी हैं और पैनामा पेपर्स पर
काम कर चुके हैं, पेंडोरा पेपर्स पर भी काम कर चुके हैं। फैक्ट फोकस की अरीबा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी तहकीकाती सहाफ़ी हैं और इन पेपर्स के ऊपर काम कर चुकी हैं। सबसे पहले अरीबा, हुमायूं अख्तर से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की, हारून अख्तर से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की, मगर उन्होंने हमारे फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। हम 2 दिन से उनसे राब्ता करने की कोशिश करें, मगर उन्होंने अपने एक चैनल के ऊपर जाके, एक निजी टीवी चैनल के ऊपर जाके अपना मौकफ सामने रखा है, वो हम दिखा देते हैं, फिर आपसे उस पर सवाल करते हैं। दिखाइए जी। 85 में अकाउंट खुला, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे कि वो कितने अमाउंट से खुला, और उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे। आगे 20 साल जाके कहते हैं कि इस अकाउंट में इतने पैसे हो गए। लादा जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान उस वक्त जो थे वो ISI में थे और वो अफवाह जहाज लड़ रहे थे। He died in 1988। सो अगर आपने मेरे वालिद को इम्प्लीकेट करना है इनडायरेक्टली भी, तो आप बताएं ना कि किस वजह से और किस पैसों की वजह से आप इम्प्लीकेट कर रहे हैं, और किस किस्म की आपने चैनल को देखा है या किस किस्म की रिपोर्टिंग आपने देखी है। आपने जो अकाउंट की बात की है वो मेरे एक भाई के पास इंफॉर्मेशन आई थी इससे पहले, आउट होने से पहले। उन्होंने इसको डिनाई किया, उन्होंने कहा दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, और उन्होंने कहा कि इट इज बेस्ड ऑन। अरीबा, आपने सुन लिया होगा, ये हारून अख्तर साहब अपने वालिद को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि किन चैनल्स को आपने देखा था, मेरे वालिद जो हैं वो तो 1988 में वफात पा चुके थे। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये याद दहानी कराना चाहूंगी कि इस इन्वेस्टिगेशन पे बहुत महीनों का काम लगा है, और हमने जो भी ये बैंक अकाउंट्स थे, जो नंबर्स हमारे पास आए थे, इसके साथ जो भी डिटेल्स मौजूद थी, तो कुछ बुनियादी ज़ाती मालूमात होती है जो जरूरी होती है किसी भी बैंक अकाउंट को बनाने के लिए। उस बुनियादी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर ही हमने आगे तहकीकात लॉन्च की थी, और हमारी तहकीकात इस हिसाब से बिल्कुल 100% करेक्ट है कि हमने उसको मैच किया है सरकारी दस्तावेजात के साथ। हमने देखा है कि इन सारे महीनों में हमने रिसर्च की है थॉरली, और उस ज़ाती बुनियादी मालूमात को बहुत क्लियरली कनेक्ट किया है टू हारून अख्तर's फादर। तो जहां तक मेरी बात है, आई वुड से कि अगर उनको लगता है ये चीजें गलत हैं तो इज फ्री टू टेक अस टू कोर्ट अगेंस्ट इट। लेकिन वही बात है कि दिस इज कमिंग थ्रू मंथ्स लॉन्ग, मतलब बहुत लंबी महीनों की रिसर्च है ये, और बिल्कुल आई स्टैंड बाय इट, एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी वुड, मतलब फैक्ट फोकस की तरफ से भी हम कहेंगे कि ये हम बिल्कुल इस रिसर्च के साथ खड़े हैं। बिल्कुल हम समझते हैं ये 100% काम हो रहा है। और अरीबा, उन्होंने ये भी कहा है कि हम सोच रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें। उमर चीमा साहब, आपने जो तहकीकात की थी उसके अंदर बहुत सारे वुज़रा के नाम आए थे, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर के नाम भी थे, शौकत तरीन साहब का नाम था, अलीम खान साहब का था, खुसरो बख्तियार साहब का था, फैसल वाउडा साहब का था। मुझे बताइए कि इन सारे केसेस के अंदर नैब इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर आगे जाके क्या हुआ? कोई आपसे राब्ता किया गया, इंफॉर्मेशन ली गई, क्या पेशरफ्त हुई इन केसेस के अंदर? देखिए, बज़ाहिर तो कोई पेशरफ्त नहीं है, और यानी एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी, जो एक इंस्पेक्शन कमीशन में कोई 2-3 लोग थे, उनकी एक कमेटी बनाई थी। अभी तक कोई ऐसी कोई सिग्निफिकेंट, कोई काबिल जिक्र बात तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने कुछ काम किया है। जो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इंफॉर्मेशन को वेपनाइज करने का अपने मुखालफिन के खिलाफ, ये भी गालिबन उस हद तक ही इस्तेमाल होगी कि जिधर आपने एक अपना रिकॉर्ड सारा, अगर जो रिकॉर्ड कलेक्शन कर ली और जब कोई जरूरत पड़ी तो आपने बता दिया कि आपका वो फलां केस है, कोई नैब को कह दिया कि इनका केस खोल दें, तफ्तीश शुरू कर दें, तो मुझे तो लगता है कि अपना आर्काइव जो है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि बवक्ते जरूरत उसको इस्तेमाल किया जा सके। इससे ज्यादा तो इसकी अहमियत नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये एक बात, इधर जो भी बातें की जाती है ना, जो दावे होते हैं, बिल्कुल उसके मुतजाद काम होते हैं। मसलन एक बात होती है जी कि हम फेस नहीं देखते, हम केस देखते हैं, और जब ये वो बात लोग कर रहे होते हैं ना, उन्हें उनके चेहरे पर कोई थोड़ी बहुत भी कोई मलाल, कोई शर्मिंदगी के आसार नजर नहीं आते। हालांकि ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ नौकरी पेशा अपनी अपनी नौकरी के लिए, यानी कि जिसके पीछे उनको लगा दिया वही काम शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ दरअसल होता ही ये है,
फेस देखा जाता है, केस नहीं देखा जाता। अच्छा, आपको इधर पहले टारगेट किया जाता है कि फलां बंदे के हमने पीछे जाना है, फिर उसके बाद उस पर कोई केस कोई फैब्रिकेट किया जाता है। अगर कोई आपको कोई जेन्युइन एविडेंस ना भी मिले तो उसको यानी कि उसके खिलाफ ज्यादातर ओवरऑल टारगेटिंग होती है इधर सारी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में। जी, ये तो बात आपने एक तरीके से दुरुस्त की कि इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई, ये तो एक फैक्ट है। अरीबा, आपकी जानिब आती हूँ, ये जिन लोगों के नाम आए हैं जिसके अंदर गुलजार फैमिली भी है और भी बेशतर लोग हैं उसके अंदर, आपने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उनसे चेक करने की कोशिश की और उनका क्या उनका रिस्पांस क्या था? तो हमारी तरफ से जो भी इस तरह के अकाउंट होल्डर्स से रब्ता किया गया तो हमें ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। और मैं ये बात भी एम्फसाइज करूंगी कि जैसे आप देखिए गुलजार फैमिली को देखें या आप हाशिम जवान बख्श को देखें या आप सफीला बख्श को देखें, इन ऑल ऑफ दीज केसेस या तो पास्ट में नैब की इंक्वायरीज भी रह चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर। जहां तक गुलजार अहमद की फैमिली की बात है, उनकी मिस डिक्लेरेशन भी हमने मेंशन की है कि इन एसेट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता था। तो ये कोई नई, आई वुड से कि ये बात जरूर देखनी चाहिए कि इन लोगों पे पास्ट में भी केसेस और इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन जो तहकीकात की गई हैं उसके बावजूद लेकिन ये प्रॉस्पर करे हैं और कोई खास अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई इनके अगेंस्ट। तो वो बात अपनी जगह है, वो बात अपनी जगह है। बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अरीबा हमारे साथ ही रहेगा, उमर भी हमारे साथ रहेंगे और एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मगर जो उन्होंने बात कही है उसको आगे फ्लैश आउट करते हैं कि जी कई दफा पाकिस्तान के अंदर केस के ऊपर फोकस नहीं होता, फेस के ऊपर फोकस होता है और शायद इसी वजह से करप्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ स्टडीजें बता रही हैं कि बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही। और मसला ये नहीं है, कई दफा मसला ऐसा लगता है कि करप्शन का खात्मा है, मगर शायद ऐसा नहीं है। करप्शन का खात्मा नहीं है, शायद कुछ ऐसे लोगों का खात्मा है जो नापसंदीदा है। इस पे वक्फा लेते, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है स्विस सीक्रेट्स के ऊपर। हमारे साथ उमर चीमा साहब और अरीबा फातिमा मौजूद हैं। अरीबा, जब आपने तहकीकात की फैक्ट फोकस के तौर के ऊपर, मतलब उनकी नुमाइंदगी करते हुए, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, क्या उनको ये जो स्विस बैंक अकाउंट्स हैं खास तौर पे बड़े पॉलिटिशियंस के, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था? जी, आई वुड से कि बिल्कुल उनको नहीं इस चीज की मालूमात थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो अकाउंट गुलजार अहमद से एसोसिएटेड था वो तो अनडिक्लेयर था इलेक्शन कमीशन से भी ड्यूरिंग द टाइम के जब उनके सन सेनेटर्स थे। तो आई वुड से कि यहाँ एक चीज और भी जरूरी है कि जो पास्ट में भी इंक्वायरीज हुई है नैब की तरफ से और रेलेवेंट टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से, उन इंक्वायरीज का भी कोई खास कंक्लूजन कभी नहीं आया, स्पेशली इन पॉलिटिशियंस की हवाले से जिनके बैंक अकाउंट्स अभी स्विस सीक्रेट्स में आए हैं। अच्छा उमर चीमा साहब, फिर क्या वजह है? आपने पहले भी इसके बारे में बात की कि देखिए जब पैनामा पेपर्स आए थे तो बड़ी थरथल्ली मची थी, फिर जब पंडोरा पेपर्स आए उसके ऊपर कम थरथल्ली मची, फिर अब ये स्विस सीक्रेट्स जो आए हैं उसके ऊपर इससे भी कम थरथल्ली मच रही है। इसकी क्या वजह है कि एक तहलका जो मचता है वो इक्वल अमाउंट में मचना चाहिए ना? व्हाई द लेस अर्ज टू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस? बात वही है ना कि असल में हम टारगेट किसको करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो हर आदमी के एक अपने म्यार हैं और उसकी नजर में जो उसके मुखालफिन हैं वो करप्ट हैं, और अगर उनके अपनी सफ़ों में या अपने जो करीबी दोस्त हैं उनमें से अगर कोई इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व है तो उसकी कोई ना कोई उन्होंने जस्टिफिकेशन अपने पास रखी हुई है। अदारे मौजूद नहीं है ना, असल में बात यह है कि हमारे इदारे जो हैं सारे एक ही पेज पर हैं, और जब वो एक पेज पर होते हैं ना फिर वो ये काम नहीं करते कि जो जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं, फिर वो वही काम करते हैं कि जो उन्होंने अपना कोई एक टारगेट अचीव करना होता है और उसके लिए वो अपनी कोई तौजीहात तलाश करते हैं और फिर कोई अपना उसी तरह का लाएअमल बनाते हैं, कवानीन भी उसी तरह के हो जाते हैं, आगे इंसाफ भी उसी तरह का मिलता है।
मगर उमर, आपने चूंकि बहुत सारे तहकीकाती, आपने पंडोरा पेपर्स में भी आपने काम किया, फिर पैनामा पेपर्स, कोई तहकीकाती इदारा था जिस तरह नैब या FIA जिन्होंने आपसे राब्ता किया हो और कहा हो कि जी जो आपके पास मवाद है आप हमें दें? देखिए, मैं तो फ्रैंकली मैं एक रियलिस्टिक अप्रोच वाला आदमी हूं। मैं बार बार लोगों की इस तरह की जांचों में नहीं आता। जब अभी पेंडोरा वगैरह हुआ है तो ये कह रहे थे जी कि सारे नाम नहीं चले तो आप हमें दें। तो हमारा जो है ना असल में एक अप्रोच ओवरऑल एक तमाशबीन की अप्रोच है जी कि वो फलां नाम आपने क्यों नहीं चलाए। ठीक है, मैंने कहा कि एक तो ICIJ की पॉलिसी है और उसके तहत हम डेटा रिलीज कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारी कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, आप खुद भी कुछ काम किया करें। और तीसरी बात यह है कि जो नाम हमने चलाए हैं, अगर आप उन पर कोई आपको कोई पेशरफ्त में जरूरत हो या आपको किसी जगह मसला हो तो आप बताइएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि ओवरऑल कोई डायरेक्शन नहीं है, और फ्रैंकली उनको भी नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा अरीबा, आपसे पूछूंगी कि ये जो हाकिज़म पर चल रही है जी, ये वही सवाल जो मैंने उमर से किया कि किसी तहकीकाती इदारे ने आपसे राब्ता किया कि जी हम मजीद इसके ऊपर तहकीक करना चाहते हैं, जो इतने बड़े स्विस अकाउंट्स हैं इनके बारे में आपसे तफसील लेना चाहते हैं? नहीं, मुझे हमसे किसी तहकीकाती इदारे या टैक्स अथॉरिटी ने नहीं राब्ता किया। इनफैक्ट आई वुड से कि मुश्किल ही है कि वो ज्यादा कुछ इंटरेस्ट शो करें, कंसिडरिंग की हिस्ट्री में भी हमारे मुल्क के टैक्स अथॉरिटीज ने और इन फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज ने ज्यादातर एलीट तबकों को सिर्फ मदद ही की है इस शुबे में। बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा, आपने हमें ज्वाइन किया। उमर चीमा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, जिस तरह के उमर भी बात कर रहे थे, अरीबा भी बता रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी तहकीकाती इदारे ने इन दो सहाफियों से कम अरीबा से तो राब्ता नहीं किया। तो करप्शन का अगर खात्मा करना है तो फिर सबको एक ही पेज के ऊपर लाना होगा, और दूसरा ये है कि फिर आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, फिर आप फेस के ऊपर नहीं जा सकते, फिर आपको केस के पीछे जाना होगा, नहीं तो करप्शन जो है वो विक्टिमाइजेशन में तब्दील हो जाएगी और ये तोहमत लगेगी। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।